امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کو اربوں ڈالر کا فوجی سامان دینے کا اعلان، بھارت کو تیل و گیس فراہم کرنے کا فیصلہ، تجارتی تعلقات بڑھانے کا اعادہ۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ٹرمپ کا ممبئی حملوں کا ذکر۔ بھارتی وزیراعظم کا شکریہ، F-35 سمیت کئی ارب ڈالر کا فوجی سامان بھارت کو دیں گے۔ بھارت جتنا ٹیرف لگائے گا ہم بھی اتنا ہی لگائیں گے۔ انتہا پسند دہشت گردی کا بھارت کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ یوکرین کو نیٹو میں نہیں ہونا چاہیے، جنگ کے بجائے یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنا بات کی۔ چین سے امریکہ کے بہت اچھے تعلقات ہوں گے۔ چین ہمیں یوکرین جنگ ختم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا تجارت کا حجم دوگنا کرنے کا عزم۔ امریکی یونیورسٹیوں کو بھارت میں کیمپس کھولنے کی دعوت، امریکی صدر کو دورہ بھارت کی دعوت۔ امریکہ خود کو عظیم بنانا چاہتا ہے، ہم بھی بھارت کو عظیم بنانا چاہتے ہیں۔ لاس اینجلس میں نیا بھارتی سفارت خانہ کھولیں گے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی۔ امریکہ کا تجارتی شراکت دار ممالک پر باہمی ٹیکس لگانے کا فیصلہ، باہمی ٹیکس کے نفاذ سے شفافیت آئے گی۔ جوابی ٹیکس لگانا امریکہ کے مفاد میں ہے۔ امریکہ کے اتحادی تجارت کے معاملے میں ہمارے دشمنوں سے بدتر رہے ہیں۔ یورپی یونین کے ساتھ تجارت میں بھاری خسارہ ہو رہا ہے۔ برکس ممالک پر کم از کم 100% ٹیرف ہو سکتا ہے۔ روس اور چین ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں ہے، جو برا شگون ہے۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوئی وجہ نہیں۔ دفاعی اخراجات میں کمی کے لیے روس اور چین سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ G7 سے روس کو نکالنا غلطی تھی، دوبارہ شامل کرنے پر خوشی ہوگی۔ میونخ میں روس اور یوکرین کے درمیان بات چیت کا امکان ہے۔ اجلاس میں سعودی عرب بھی شراکت دار ہے۔ سابق حکومت نے کچھ نہیں کیا، روس یوکرین میں جنگ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا باہمی ٹیرف کے اعلان کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو پر کڑی تنقید، گورنر ٹروڈو کہہ دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا دورہ پاکستان مکمل، وطن واپس روانہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ وزیراعظم سے ترک صدر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے مثبت انداز پر اطمینان کا اظہار، تعلقات کو باہمی طور پر فائدہ مند اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اعلامیہ جاری۔ ترکیہ پاکستان ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کا 7واں اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر ترک صدر کا فقید المثال استقبال، گارڈ آف آنر پیش، دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ رجب طیب ایردوان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا۔ طیب ایردوان نے وزیراعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے خوش آمدید کہا۔ ترک صدر سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مصافحہ کیا۔ وزیراعظم نے ترک صدر سے کابینہ کا تعارف کرایا۔ شہباز شریف کا ترک صدر کے ہمراہ آئے اعلیٰ سطح وفد سے مصافحہ۔ رجب طیب ایردوان نے وزیراعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا لگایا۔ ترک صدر کے اعزاز میں پاک فضائیہ کا خصوصی فلائی پاسٹ F-16 طیاروں کی فارمیشن نے معزز مہمان کو سلامی دی۔ پاک ترک دوستی کا نیا باب، پاکستان اور ترکیہ میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط، 24 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب ایردوان نے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے۔ اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم کرنے کے MOU پر دستخط، انرجی ٹرانزیکشن کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت، زرعی بیجوں اور پانی کے شعبوں میں تعاون کا معاہدہ۔ کان کنی اور ایکسپورٹ کریڈٹ بینک ترکیہ اور ایکسپورٹ امپورٹ بینک پاکستان میں مفاہمتی یادداشت۔ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ کونسل ترکیہ اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ کونسل ترکیہ اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کی مفاہمتی یادداشت۔ ترک صدر نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو الیکٹرک کار کا تحفہ بھی دیا۔ That Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. Thank you very much for your heartfelt appreciation for the sacrifices the people of Pakistan and the armed forces of Pakistan have given to defeat terrorism. Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir. پاکستانی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف
नबर्त आज़मा है, दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्किया ने मसला कश्मीर पर हमेशा हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान कब्रिस के मामले पर हमेशा तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तकरीब से खिताब। तुर्क सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का अदा। रजब तैयब एर्दोगान ने तकरीब से खिताब में कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में तजारती उमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों में $5 अरब के तजारती हजम पर बातचीत हुई। अपने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया बरादर मुल्क है। तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान में बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात हुई। रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामज़न है। तैयब एर्दोगान मुस्लिमा उम्मा के आवाज़ हैं। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान तुर्किया बिज़नेस फोरम से खिताब। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान तुर्किया बिज़नेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसराइल ने गज़ा में मज़ालिम की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर मुलाकात इलाकाई बैनुल-अक़वामी मसाइल बिलख़ुसूस ग़ज़ा और शाम पर भी तबादला ख़याल। दोनों सदूर का आलमी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। बामी मफ़ाद में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफ़ा, सियाहत, अवामी रवाबत के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का अदा। दोनों ममालिक का तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर। सदर ममलिकत का दोनों ममालिक के बैंकारी शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन दो तरफ़ा तिजारती हजम को इसकी भरपूर सलाहियत तक बढ़ाना है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। पाकिस्तान तुर्किया के कारोबारी इदारों की जानिब से अहम शोबों में मज़ीद सरमायाकारी का ख्वाह है। तुर्क सदर एर्दोगान का दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़बूत बनाने के लिए तुर्किया के अज़्म का अदा। कहा, तुर्किया पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का ख्वाह है। तुर्किया के सदर ने पाकिस्तान की तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के हुसूल को सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सदर एर्दोगान, तुर्क खातून अव्वल और वक्त के एजाज़ में शाही का भी एहतमाम किया। वज़ीर आला पंजाब के इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज़ ने एमना एर्दोगान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकोनॉमी की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज़ ने कहा है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम में इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म मुतारिफ कराया है। ऐसा पंजाब बनाएंगे जिसका शुमार दुनिया के साफ सुथरे खतों में हो। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खातून अव्वल तुर्किया एमना एर्दोगान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला। अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आर्मी चीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। कहा कि आर्मी चीफ ने ज़हराने में कहा कि मुझे कोई ख़त नहीं मिला, मुझे ख़त पढ़ने का शौक़ नहीं। अगर ख़त मिला तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म जो मुनासिब कार्रवाई समझें करेंगे। बानी को किसी ख़त का जवाब नहीं मिला। जो कबूतर बनिकाला से उड़ाते हैं वो इस छत पर उतारता नहीं जहां वो उतारना चाहते थे। पता नहीं कि ख़त किस मशीन में डालते हैं। 350 सफ़ात का ख़त चीफ जस्टिस के नाम कैसे लिख दिया? ख़त कहाँ जा रहे हैं और कौन लिख रहा है? बानी इस पर मोहर लगा देते हैं कि ये मेरा ख़त है। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हकूक़ याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ?
जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुल्ज़िमान को फेयर ट्रायल का हक है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। निज़ाम यह है कि इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुलजिम को पकड़ा जाता है। बरतानवी कानून तो वहाँ की फ़ौज के डिसिप्लिन से मुतालिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, ये इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिया है कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। एक जुर्म सरजद हुआ तो सदा एक होगी। ये कैसे होगा कि मुलजिम का मिलिट्री ट्रायल दूसरे को अलग कर दिया जाए। अदालत ने समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडाला जेल में मुलाकात। पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल तावन की हिदायत कर दी। मुलाकात में शरफ अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकरीबन बददारी आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत कानून इंसाफ ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस सलाउद्दीन पनवर, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस सरफराज रोकर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस एजाज सबाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस तैनात। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 वापस ले लिया गया। बिल वापस लेने की तहरीक सैनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। सैनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि IMF के वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, जजों से नहीं की। उनका जुडिशल इस्लाहात का प्रोग्राम है। उन्होंने गवर्नेंस और अदालती इस्लाहात पर बात की। चीफ जस्टिस ने IMF वफ़द को जुडिशल इस्लाहात पर बताया। IMF का वफ़द किसी मुकदमे का पूछने नहीं गया, यहाँ IMF को ख़त लिखे जाते हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि 1 अरब डॉलर के लिए हम खैरात मांग रहे हैं। हमारे सरमायाकार बैरून मुल्क जा रहे हैं। अगर मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो लोग मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं। सारे मसाइल की जड़ मुल्क में कभी शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 13 खवारजी जहर 62 डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में ऑपरेशन 5 खवारिज हलाक। मारे जाने वाले खवारजियों में शागुल उर्फ रूहानी शामिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 अलग अलग झड़पों में 5 खवारिज मारे गए। ज़िला लकी मरवत में कार्रवाई 2 खवारिज हलाक। ज़िला खैबर में ऑपरेशन के दौरान 1 खारजी मारा गया। हलाक खवारजियों से असला गोला बारूद बरामद। खवारजी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की हलाकत में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के असासे ज़ाहिर करने का कानून मंजूर कर लिया। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफ़ा 15A का इजाफा हुकूमत सरकारी मुलाजिम के माली तर्ज अमल को रेगुलेट और मॉनिटर करेगी। मालूमात तक रसाई के कानून के तहत सरकारी अफसरान के असासों की तफसील वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगी। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान असासे पब्लिक और अहल खाना के असासों की तफसील भी देने के पाबंद होंगे। सरकारी अफसरान को FBR के ज़रिए अपने असासे ज़ाहिर करना होंगे। किसी भी ऑफिसर की ज़ाती मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। हमास का जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली रबानियों की रिहाई के फैसले पर अमल दरामद करने का ऐलान।
طے کردہ ٹائم ٹیبل کے تحت قیدیوں کے تبادلے سمیت دیگر چیزوں پر عمل درآمد کریں گے۔ ثالث کاروں نے معاہدے پر عمل درآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اردن غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی نہیں ہونے دے گا۔ اردن ٹرمپ کی ہر ٹرم تجویز کے خلاف ہے۔ فرانس کی غزہ سے متعلق ٹرمپ کے منصوبے پر تنقید۔ غزہ کی تعمیر نو کا یہ مطلب نہیں کہ آبادی کو بے دخل کر دیا جائے، فلسطینیوں اور اب ممالک کا احترام کرنا ہوگا۔ فلسطینیوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی سرزمین چھوڑ کر چلے جائیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔